کے ٹائم پہ ایک دم اچھا کا ایسا لگ رہا ہے 2 ہارڈ اور سو وہ کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ اس سے کوئی کنیکٹ نہیں. بیسیکلی اس کے لیے میں نے کیا کرتا ہوں, میں بیسیکلی پیشنٹ بھی خود پوچھتا ہے ڈاکٹر صاحب کیا کچھ ہڈی کے اندر کچھ غائب ہو گئے کیا یا گھس گئے کیا, تو اس کے لیے سب سے بہترین چیز ہے ماؤلم اور خمیرہ مروارید, یہ کمبینیشن دیا کرو. اس ٹائم تھوڑا سا سر یہ روشی ناز جو ہیں آپ سے سلام کرنا چاہ رہی ہیں, کچھ دقت آنا چاہ رہی ہیں. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیروں میں بہت نمنس ہو. سر ہیپی یونانی ڈے. سیم ٹو یو. ہیپی یونانی. سیم ٹو آل حکیمس. ہم تو ایسا ہے کہ ہر ڈے ہیپی مناتے ہیں یونانی کی. اینی وے بول روشی بولیے. کچھ دنوں سے میرے پیروں میں بہت نمنس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے نیند میں بہت پریشانی ہو رہی ہے سونے میں. دونوں پیر پہ گیا. ہاں دونوں پیر پہ. اچھا. کب شوگر سے ہو ہے. رہا ہے؟ وہ ہو رہا ہے ہفتے بھر سے ہو رہا ہے, زیادہ ہے. آپ نے ابھی ریسنٹلی کوئی وزن وغیرہ اٹھایا تھے کہ زور سے؟ نہیں کوئی وزن تو نہیں. ادھر سے ادھر کوئی شفٹ کیا, ایسا کچھ لوڈ پڑے تھے کہ کمر میں؟ نہیں تو. خالی پیر پہ, پیر پہ, رمت کے ہاتھ میں نہیں. کاٹن تو نہیں کھا لیے تھے؟ پیروں کے تلووں میں ہے بیسیکلی کیا جلن اور ہوتا ہے کبھی جو درد وغیرہ جو ایک پرٹیکولر مقام میں یا ایک یونیلیٹرل پوزیشن میں, تو کبھی کبھی لیٹنے چلنے پھرنے کی جو پوسچرل ابیوز ہوتا ہے. پوسچرل ابیوز کا مطلب آڑا ٹیڑھا بیٹھنا, اس کی وجہ سے کبھی کبھی کوئی نس میں کھینچاؤ ہوتے, تو جس طرف سے وہ کھینچاؤ ہوتے شاید کمر میں آپ کو کوئی چیز اٹھانے کے ٹائم پہ, دھکا دینے کے ٹائم پہ کچھ موومنٹ اگر غیر طبعی موومنٹ ہوا تو لوور ایکسٹریمٹی میں آتا ہے. کبھی کبھی صرف پیر کے دوے کے اوپر ہم لوگ کیا کرتے ہیں, اس کو صرف پیرستھیشیا یا نیوروپیتھی کے نام دیکھ کے کوئی نہ کوئی نیورو بیونڈ یا وغیرہ یہ چیز چلا جاتا ہے. اس میں ابھی پرابلم کبھی کبھی واٹر ریٹینشن بھی ہو سکتے ہیں مارننگ, کیونکہ جو موسٹ ڈیپینڈنٹ پارٹ ہے پیر کے اندر, تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو ابھی بیسیکلی آپ کام کرو, باقی سوجن وغیرہ نہیں ہے نا, ایڈیما وغیرہ کچھ نہیں ہے نا؟ نہیں شوگر نہیں ہے. شوگر اپ ڈاؤن ہوتی رہتی. لو شوگر تو نہیں ہوتا نا زیادہ؟ لو نہیں ہوتی, 300 پہنچ جاتی ہے. ابھی تو سردیوں میں ایسے ہی چل رہی تھی. اوکے. اب ایک کام کرو, ابھی رائٹ نو خالی منہ میں ہی چلاؤ 1 OD. جی. اوکے, باقی کوئی دوا مت لو, صرف منہ میں ہی 1 OD. جی. اس کے بعد میں دیکھیں گے. لے تو رہے تھے مومیائی, ہم مومیائی تو لیتے. اس کے ساتھ میں کچھ لیے تھے کیا؟ اس کے ساتھ میں بیچ میں کیلڈیکائن لے لیتے ہم. نہیں. اور یہ کب سے کھا رہے ہیں مومی؟ مومیائی تو ہم لیتے ہیں, برابر لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ملٹی وٹامن تو ایک لینا پڑتا ہے. ایسے ایک کام کرو, پھر اس کے ساتھ میں صرف ایک کزرا کی ایڈ رکھو 1 BD. جی. باقی کچھ جی. نہیں. ایک 15 days اس کو استعمال کرو, پھر ہم دیکھتے کیا ہے. جی ٹھیک. تھینک یو. اب یہ ہے کہ آج کا دن ہمارے لیے ایک حکیم اجمل خان صاحب کی برتھ اینیورسری اور گورنمنٹ کے ذریعے یہ اعلان, تو اس سے پہلے کہ تاخیر ہو, کہ اس سے پہلے کہ ہم حکیم اجمل خان صاحب کو عقیدت پیش کریں, اور جو آج کے پروگرام کی شروعات ہے وہ ہم سورہ فاتحہ پڑھ کر حکیم اجمل خان صاحب کی روح کو ثواب پہنچائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اے اللہ اس کا ثواب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح کو ثواب پہنچ کر, انبیاء اکرام, شہداء اکرام, اولیاء اکرام کی روح کو ثواب پہنچ کر, یا اللہ حکیم اجمل خان صاحب کی روح کو ثواب پہنچے. یا اللہ جو ان کے جذبات تھے, یا اللہ جو ان کی احساسات تھے, اے اللہ وہ پورے دنیا عالم میں, یا اللہ ہمیں ذریعہ بنا کر یا اللہ اس قوم اور سماج کے لیے استعمال فرما.
آمین ثم آمین آمین ثم آمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا میں حکیم اجمل خان صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے لیکچر کی شروعات کریں. السلام علیکم. میں ابھی آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دن حکیم اجمل خان ڈے. مختلف مقام میں مختلف پروگرام، کچھ جگہ پہ میڈیکل کیمپ، فری میڈیکل کیمپ، بہت ساری چیز آج کل ہونے والا ہے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جسے علاؤدین نے یا ان کی ٹیم نے جو بھی چیز ایک چھوٹے پیمانے پہ سٹارٹ کر کے ان کے نام پہ دعائیں مانگے اور یہ سب چیز بہت ہی ایک اچھی ایک طریقہ ہے جو زیادہ زور نہیں، زیادہ ہلچل نہیں ہے، لیکن جو طریقے سے ہم اس چیز کو یاد کر سکتے ہیں، اس چیز کو ہم اپلائی کر سکتے ہیں، ایک بہترین طریقہ ہے. آپ نے جو ابھی سب کو بتایا دکھائے کہ ان کے نام کو یا ان کے لیے دعا مانگنا، کہ ہر جگہ ان کو یاد کیا جاتا ہے، ان کے نام سے سمجھو تصویریں، اس کے نام پہ بہت سارے چیز نکالا ہوگا، لیکن اصل ان کے لیے چاہیے تھا کہ دعا ہمارے طرف سے، خاص طور سے ہم جو آپ لوگ آپس میں جو مل رہے اس کی ایک تو سبب کا ایک چھوٹا سا حصہ حکیم اجمل خان صاحب. تھینک یو ویری مچ. لاسٹ ٹائم ہم نے جو لیکچر سٹارٹ جو کیے تھے وہ آج ہم اس سے ہٹ کے تھوڑا ٹاپک ادھر آج رکھا ہے، آج جو ڈے کے حساب سے. پھر بھی میں نے تھوڑا ایک چیز کو ادا کر کے پچھلے ٹاپک کو تھوڑا کنکلوڈ کر رہا ہے، کیونکہ اس میں ہم نے وہ پچھلے ٹاپک میں تھوڑا سا ڈسٹربنس بھی ہو گیا تھا، اس کے بعد بیچ میں کال آ گیا میرا، تو پھر بعد میں اس کو یہ نہیں ہوا. تو ہم نے جب پرانی کتابوں میں جو پڑھتے تھے جو ایک کہانی، اس میں ایک چیز دکھتا تھا کہ کھل جا سم سم، کھل جا سم سم. تو ہم لوگ کہانی اتنی دلچسپی پہ پڑھتے تھے کہ یار کیا بات ہے. تو ہم لوگ وہ ٹائم پہ بچ میں کیا نہیں، یہ کہانی ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی ایکچوئل کیا یہ حقیقت بن چکے، کیونکہ آواز سے کوئی چیز آپ اس کو آپریٹ کر سکتے، جیسے آواز کا بھی ضرورت نہیں. کبھی کبھی آپ کوئی بڑے بڑے شاپنگ مال میں جا کے دیکھو، اس کی گیٹ کے سامنے ٹھہر کے دیکھو، دروازہ آپ کے لیے کھول کے دیتے، وہ کوئی آواز بھی نہیں آ رہے. تو سوچ کے دیکھو یہ چیز اگر سمجھو آج سے 50 سال پہلے کوئی کہانی میں یا کوئی حقیقت کی طرف ہم نے بیان کیا، تو آپ لوگ بولیں گے نہیں یہ سب نہیں ہو سکتا. ابھی آپ ہر دکان میں، ہر آفس میں آپ کو ڈکٹیٹ کرتے، آپ کو تھرمل ڈکٹیٹ رکھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے آفسوں میں، بڑے بڑے ہوائی اڈے میں، سب جگہ پہ آپ کو تھرمل کنڈکٹر لے کے، کیونکہ آپ کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انٹری مارتے سمجھ میں آئیں گے اس بلڈنگ میں کون کون بخار کے آدمی لوگ داخل ہوا ہے، کیونکہ آپ کی باڈی ٹمپریچر بھی وہاں ڈکٹیٹ کر لیتے. تو آواز تو دور کی بات ہے، آپ کی پریزنس سے آپ کی بیماری سمجھ میں آنے لگتی ہے. یہ سب چیز کے پیچھے جو کیفیت کام کر رہے ہیں، جو کیفیت درکار ہو رہے ہیں، یا جو کیفیت یا جو پراپرٹی کام کر رہے ہیں، وہ پراپرٹی یونانی کی فلسفی کے آدھار پر. اوکے، تو جتنا غور فکر کرنے والے کو اتنا ہی ان کو مطلب یہ چیز کو سمجھ میں آتا. جیسے میں نے آج میرے اس میں کیا نام اس کا، میری واٹس ایپ کی جو ڈی پی میں اور اس میں کیا نام اس میں ڈالا ہے کہ ایک چیز ڈالا میں نے، جو دم غافل وہ دم کافر، جو دم غافل وہ دم کافر ہے. ایک چھوٹی سی ورڈ ہے، ایک صوفی ورڈ ہے وہ. اس کی مفہوم ایسا ہے کہ جو آدمی غافل رہتے یعنی کہ سوئے ہوئے رہتے، مطلب کانشیس نہیں رہتے یا ہوش میں نہیں رہتے، وہ ایکچولی کافر ہی ہے، کیونکہ دنیا سے ان کو کوئی سمبندھ ہی نہیں. وہ بہت اچھا لگا مجھے میں پڑھنے کے اندر. تو آج کی ٹاپک ہے ہمارے ہاؤ ٹو مینیج پیڈیاٹک. تو جو پیڈیاٹک کے بارے میں ہم بات کرتے کہ ایک ماڈرن کے حساب سے پیڈیاٹک ایک ایسی ٹاپک ہے جس میں واقعی ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ بنا ہے. میں سمجھتا ہوں 50 سال یا 60-70 سال پہلے سب پیڈیاٹک بول کے ڈویژن نہیں تھا، ہر آدمی کو پیڈیاٹرکس ہو، جیریاٹرکس ہو، سب علاج کرتا تھا. پیڈیاٹک آج کل ڈپارٹمنٹ بن گیا، پیڈیاٹک کی ایم ڈی ہو گیا، پیڈیاٹک میں اسپیشلائزیشن ہو گیا. تو پہلے زمانے میں پیڈیاٹرک کو کیسے کلاسیفائی کیے تھے ماڈرن کے اندر، مطلب بچے کو جو کچھ بیماری، پرٹیکولر بیماری بچے کو ہوتے، کچھ بڑوں میں نہیں ہوتے، زیادہ نہیں بچوں میں، لیکن ٹریٹمنٹ کی بات جب آتا ہے تو ماڈرن میں پیڈیاٹرک رہندے کوئی بھی ایج کے حساب سے رہندے سب ایک جیسے ٹریٹمنٹ، جیسے کہ خالی لکھتے ہیں کہ ان کے ٹریٹمنٹ میں جیسے پیراسٹامول ہے باڈی پر اتنے گرام پر باڈی ویٹ، بس اتنا ہی ان کی
मेन दारोमदानी, बच्चे को कम दिया करो डोज में, बड़े को बड़े डोज में दिया करो, समझा। तो वो ट्रीटमेंट की मतलब उनकी उसूल, ट्रीटमेंट की उनकी प्रिंसिपल, ट्रीटमेंट की उनकी नजरिया बस उतने मुख्तसर है, खाली डोज को कम करके दो बच्चे के साइज के हिसाब से, बाकी कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। और ट्रीटमेंट के अंदर और बीमारी के अंदर कुछ चंद मुख्तसर बीमारी को अलहदा लिखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल फिब्रिल कन्वल्शन, जो उम्मू सिबियान कहते हैं, बच्चे को जो थोड़ा सा बुखार बढ़ गया तो उनको क्या नाम, उसको झटका आता है या उसको सीजर आते हैं तो उसको फिब्रिल कन्वल्शन कहते हैं। कभी कभी इन्फेंटाइल डायरिया, बच्चे के अंदर डायरिया, खाली इन्फेंटाइल या कुछ ऐसी नाम रख के चंद बीमारी, बाकी सब बीमारी सेम है अडल्ट में और पेडियाट्रिक में, कोई इतना फर्क नहीं। लेकिन जब हम गौर करें किसके ऊपर, पेडियाट्रिक के ऊपर, तो कितनी जो परफेक्ट कंसेप्ट है यूनानी में पेडियाट्रिक के ऊपर। जैसे पेडियाट्रिक से जाने से पहले पेडियाट्रिक किस उम्र की, किस उम्र के बीच की जो लोग को मानते, जैसे जब से पैदा हुआ यानी कि इन्फेंट से लेके 18-19 तक, जैसे जब तक नमू है जब तक नमू है तब तक हम उसको शिन्ने नमू के नाम से पुकार सकते हैं या उसको पेडियाट्रिक में गिन सकते हैं। लेकिन मॉडर्न वाले 12-13 साल के बाद में ये क्या नाम सब एडोलेसेंस, टीनेज, ये सब बोल के क्लासीफाई किया, लेकिन वो ट्रीटमेंट में वो काम नहीं आता वो सब, वो क्लासिफिकेशन, क्योंकि यूनानी एक ही क्लासीफाई किया कि शिन्ने नमू बोल के, इन्फेंट से लेके जब तक ग्रोथ है, नमू है, तब तक हम उसको पेडियाट्रिक में ही गिन सकते हैं बेसिकली। भले वो 15 साल के बच्चों को हम पेडियाट्रिक में ही गिनना चाहिए यूनानी के एतबार से, लेकिन मॉडर्न में शायद 15 साल या 16 साल हो गए तो पेडियाट्रिक नहीं, वो दूसरे डॉक्टर के पास जाते। तो क्लासिफिकेशन हमने जो पढ़े कि 4 क्लासिफिकेशन, शिन्ने नमू, शिन्ने शबाब, शिन्ने कहूलतन, शिन्ने शेखुगत। ये क्लासिफिकेशन ऐसी एक नंबर के हिसाब से क्लासिफाई नहीं की, जैसे कि 19 साल तक, 21 साल तक एक बच्चे, 21 से 40 तक, 40 से 60 तक, 60 से कब्रिस्तान तक, ऐसा बना के नहीं रखी। उसमें भी एक क्वालिटी है, लेकिन ये 4 में क्या क्वालिटी है, क्योंकि क्वालिटी के आधार पर हम बात करते हैं, ऐसा नहीं कि हमने इस हिसाब से उसको बताया। एक क्वालिटी जो बात करते हैं वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप कोई चीज की क्वालिटी की बात करते हैं तो उसी से आत्मी संबंध होता है, यानी कि वो चीज कैसे आपको असरअंदाज होते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो 4 मिजाज के हिसाब से 4 क्वालिटी है, तो वो क्वालिटी जानना जरूरी है, तभी हम तो पेडियाट्रिशियन बन सकते हैं या पेडियाट्रिक दवा बना सकते हैं। अब हमने तो पढ़ा शिन्ने नमू में रुतूबत की गलबा होता है, रुतूबत की गलबा, क्यों रुतूबत की गलबा, अगर किसी ने पूछे मैं बताता हूँ उसकी। रुतूबत की गलबा होता है शिन्ने नमू में, और थोड़ा हरारत, शिन्ने शबाब में हरारत की गलबा है, थोड़ा सा रुतूबत है, बरूदत की गलबा है, यबूसत की गलबा है, यानी कि 4 उम्र में 4 चीज की गलबा रहती है। अब शिन्ने नमू में रुतूबत की गलबा, जब उसकी क्या लॉजिक है, उसकी क्या रैशनल है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई चीज बनाना है, कोई गुड़िया वगैरह मट्टी से, तो हम पानी डालते, यानी रुतूबत जमा होती, यानी कि खुश्क मिट्टी या कोई पाउडर से हम कोई चीज उसको मुजस्समा या कोई चीज हम बना नहीं सकते, मूर्ति वगैरह नहीं बना सकते। अगर मूर्ति को थोड़ा शेप डालना है तो हम लोग क्या करते, थोड़ा सा और पानी डाल के यार ये इसको अभी टाइम मिलेगा, और थोड़ा गोंद लेते इसको। तो काम है यार, गोंदने तू के कर ले, लिए, काम कर जा, तो गोंदने तू से कर क्या, लेना जा। गोंदने से थोड़ा क्या होता है और थोड़ा डॉक्टर मजबूती आ वाजिद जाती है। तेली, तो इसमें काम करो इस चीज को रुतूबत की वजह से, तो हमको भाई ये 2 कटोरी बड़ा भी दे देना पॉइंट है। यार। ये किसी का मोबाइल ये ऑन है, तो इससे एक चीज साबित हो रहा है रैशनली। अगर किसी ने पूछा, मतलब क्या पूछे कि रुतूबत क्यों, तो उसकी फिजिक्स ये, रुतूबत से कोई चीज फैलता है, फैलने की या बढ़ने की उम्र है ये शिन्ने नमू। ये परफेक्ट हो गया, कोई सवाल ही नहीं इसके अंदर आगे पूछने की। बाद में फास्ट ग्रो है, फास्टनेस के लिए थोड़ा हरारत की जरूरत है, तो इसलिए बच्चे में ज्यादातर रुतूबत और थोड़ा हरारत की ज्यादा अगर हरारत हो गया तो रुतूबत क्या हो जाएंगे, तहलील हो जाएंगे। इसलिए रुतूबत ज्यादा और हरारत कम बना के रखे ताकि उस चीज को कोई खलल ना आ जाए। दूसरी चीज क्या है, इस चीज को हमने देखा कि इस चीज को पेडियाट्रिक के अंदर इतना तो हमको मालूम है, पेडियाट्रिक की पूरी एज की पूरी कैफियत की, तो वो किस चीज से जल्दी मुतासर हो सकते हैं, ये फिर समझने में इजी है। जैसे आप देखते होंगे कि
बहुत सारी चीज जो हमारे डेली रोजमर्रा लाइफ के अंदर जिसके अंदर रुतूबत ज्यादा रहते हैं उसके अंदर बेसिकली क्या प्रॉब्लम होते हैं, सड़ने की अमल होता है, सड़न, ताफुन। जैसे आपने कोई गिल्ला चीज छोड़ दिया, क्या मतलब अदना सा मिसाल क्या है, अगर समझे आप नहाने के बाद में थोड़ा सा सर पोंछ लिए, थोड़ा सा पानी इसमें आ गया, ज्यादा नहीं, टॉवल को हमने क्या किया, टॉवल को थोड़ा सा फेंक दिया, दोपहर में या आधा एक घंटे के अंदर आके अब उसमें से बांस मारता है, स्मेल मारते हैं मुख्तलिफ, मतलब उसकी रंग बू ये सब चीज खराब हो जाती, सिर्फ एक रुतूबत की वजह की, रुतूबत ताफुन को आमादा करता है। दुनिया की कोई भी चीज उठा के देखो, जैसे सब्जी है बहुत जल्दी सड़ जाते, जैसे कि फ्रूट्स जल्दी सड़ जाते, फ्रूट्स को अगर ड्राई करके रखे, ड्राई फ्रूट्स, तो कभी वो सड़ता नहीं, वेजिटेबल कभी सड़ता नहीं, जल्दी सड़ जाते, उसको सड़ने के लिए तो हम ड्राई नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं उसको फ्रिज में ला के रखते, फ्रिज के अंदर सर्दी है लेकिन खुश्की है, वो खुश्की की वजह से तरी उसको मेंटेन रखते हैं, या फ्रीजर में रख दिए तो खराब नहीं, तो बहरहाल ये जो ओवरऑल मिजाज के अंदर एक सड़ने की ससेप्टेबिलिटी, दे आर मोर ससेप्टेबल टू सडन, तो इसलिए कभी उठा के देखो, बच्चे जो हमारे क्लिनिक में आते हैं सबसे ज्यादा इन्फेक्शन डिजीज यानी कि ताफुनी अमराज लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे क्या होता है कि इसके अंदर गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, लैरिंजाइटिस है, निमोनाइटिस है, जितनी भी टीस है, बस ज्यादातर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन से मुब्तला होता है, ज्यादातर स्किन डिजीज से भी ज्यादातर ये सब चीज क्यों, ये बच्चे में क्यों, क्योंकि बच्चे को जो बीमारी होता है वो ज्यादातर बड़ों को नहीं होते, बड़ों की जो बीमारी बूढ़े को नहीं होते। हम लोग अगर गौर करेंगे तो प्रॉपर हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं, इसके अंदर मिजाज यानी कैफियत कितनी हद तक काम दे रहे हैं, मतलब कितनी इन्फ्लुएंशियल है मिजाज। जैसे अभी हम लोग किसी ने अगर सवाल पूछे कि इन लोग ने क्या करते कि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से दवा देते हैं, डोज और एलर्जी की बहुत ध्यान रखते, कम डोज दो। देन व्हाट अबाउट द पेनिसिलिन, पेनिसिलिन का जब इंजेक्शन देता है बड़ों को टेस्ट डोज के बाद में देता है, और बच्चे को बिगैर टेस्ट डोज बिंदास देते पेनिसिलिन, क्यों ऐसा, क्योंकि बच्चे के अंदर बेसिकली आप देखते हैं कि बच्चे के अंदर पेनिसिलिन की एलर्जी नहीं होते हैं, और बूढ़ों के अंदर या बड़ों के अंदर ज्यादातर पेनिसिलिन की एलर्जी के चांसेस होते हैं। अगर किसी ने अगर मॉडर्न डॉक्टर से सवाल पूछे तो वो तो कुछ ऐसे जवाब देंगे, यूनानी में अगर पूछेंगे तो परफेक्ट आंसर उसका। एलर्जी का मतलब ही कि अगर एलर्जी क्यों होता है तो एलर्जी से जवाब मत दो, एलर्जी को यूनानी में ट्रांसफर करो या उसको ट्रांसलेट करो। एलर्जी मतलब सफरा का छेड़ना, या कोई चीज को छेड़ो है सफरा, तो बच्चे के अंदर रुतूबत की गलबा होने की वजह से सफरा की छेड़ने की अमल यानी सफरा को बर्दाश्त करने की सलाहियत बड़ों में मतलब छीने नमों में ज्यादा होता है। इसलिए तुम देखते हो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बच्चे में कम होते, जवान में सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जवानी में हरारत की गलबा है, क्योंकि ज्यादातर एलर्जिक मैनिफेस्टेशन, ज्यादातर ड्रग एलर्जी छीने शबाब में होता है, छीने नमों में एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कम होते हैं, नहीं होता ऐसा नहीं, लेकिन बहुत कम होता है। इसकी वजह यह कि सफरा को छेड़ने के लिए उतनी ही ये चीज की जरूरत पड़ती है, और रुतूबत की गलबे की वजह से बहुत सारे ऐसी चीजों से बच्चा हमेशा सेफ रहता है। अभी एक बच्चे को अगर हड्डी भी अस्सलाम टूट वालेकुम सर। सर साउंड बहुत कम आ रहा है। यस यस, अभी सही आ रहा है। जी सर, पहले से बेहतर हूँ। क्योंकि एक चीज क्या है, हमने वो एक स्टैंड में रखे थे, तो वो स्टैंड के हिसाब से वो स्टैंड में रखे थे, तो स्टैंड शायद हेलो, दूर है सर, दूर है शायद। हाँ तो स्टैंड के अभी सुन रहा है ना। जी सर, सुनाई तो तब भी दे रहा था सर, लेकिन आवाज थोड़ी धीमी थी। अच्छी बात है, ओके, अभी दिख भी रहा ना। जी सर। तो इसमें बेसिकली ये जो उम्र है शिन्ने नमक की उम्र के अंदर ध्यान रखो सर ज्यादातर। आपकी हाँ, वीडियो नहीं दिख रही। एक वीडियो नहीं दिख मिनट रही में, था। एक मिनट, आवाज तो काफी है ना। फिर तो कुछ गेटिश है, अगर मैं इसमें अगर ज्यादा खेलेंगे क्योंकि फिर जो भी वो भी चले जाएंगे इसमें। ओके ओके ओके,
तो मैं अभी चालू रख रहा हूँ, डोंट वरी, आवाज में टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा आप लोग का। तो इसमें मेनली चीज ये होती है कि बच्चे के अंदर इन्फेक्शियस डिजीज ज्यादा होते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज की मेन वजह यही है कि ताफुनी अमराज की मेन वजह रुतूबी है। रुतूबत की वजह से एक्चुअल प्रॉब्लम होता है। तो ये दिमाग में रखो बेसिकली, रुतूबत की वजह से ये प्रॉब्लम क्यों होता है। तो रुतूबत ताफुन को आमादा करते हैं। अब सवाल ये होता है कि बच्चों के अंदर हमने जो मैनेजमेंट करता है, तो जैसे भी बच्चे गिरने के बाद भी हड्डी भी, इवन आप देखते हैं कि हम लोग की भी पढ़ा है कि बच्चे को जल्दी फ्रैक्चर नहीं होते, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर होते। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर का मतलब हड्डी हड्डी में एक लचक रहती है इनके अंदर रुतूबत की वजह से, तो जल्दी हड्डी इनका टूटता नहीं। तो उस वजह से उनको ग्रीन ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ही होते हैं। तो हर चीज को ऐसे देखेंगे तो हमको समझ में आता है रुतूबत का बहुत बड़ा दखल है बच्चों को बीमार करना या बच्चे जल्दी शिफायाब होना। तो सिम्टम वाइज अगर समझा, ये कुली कॉन्सेप्ट है। मैंने कुली कॉन्सेप्ट की मतलब ये है कि पेडियाट्रिक के अंदर बच्चे बीमार बार बार बीमार क्यों पड़ते हैं, बार बार अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ज्यादातर बच्चे माँ क्लिनिक में लेके आने की मेन वजह, देखो बच्चे को खांसी हो रहा है, जुकाम आ रहा है, खांसी हो रहा है, जुकाम आ रहा है, फीवर आ रहा है। ये जीपी में फीवर का मतलब कि कहीं ना कहीं ताफुन है। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट जो भी अमोक्सिलिन है उसके साथ में पैरास्टामोल की सिरप इस्तेमाल करते हैं और कंपाउंडर का काम करते रहते हैं जिंदगी भर। फीवर के सिरप अगर तुम उठा के दे रहे, यू आर डूइंग ए सिम्टोमेटिक रिलीफ। आपने पैलिएटिव केयर कर रहे, आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर रहे। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के लिए सबसे बेस्ट दुनिया में कंपाउंडर है। उनकी तरह फार्मेसी और फार्माकोलॉजी कोई और नहीं सीखा होगा, तो तुम्हारे पास वो क्यों आए। तो पेशेंट माँ बोल रहे बच्चे को बुखार आ रहा है तो बुखार की दवा लिख के दिए, बच्चे को टॉन्सिलाइटिस या दर्द हो रहा है, दर्द की गोली लिख के दी। अभी तुमको सोचना है कि बच्चे को बार बार बुखार आ रहा है, बच्चे को बार बार दर्द हो रहा है, बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, बार बार खांसी हो रहा है। कहीं ना कहीं बच्चे की रुतूबत की गलबा है, बच्चे की खाने पीने में, बच्चे की रहन रहन सहन में कहीं ना कहीं रुतूबत है। अब बच्चे शिन्ने नमू में पैदाइशी तौर पे कुदरतन बच्चों के अंदर रुतूबत है। वो तो जाहिल नहीं कर सकते क्योंकि वो तो निकाल नहीं सकते, वो कुदरत है वो। अब हमको ये देखना है कि इस बच्चे, तमाम बच्चे के मुकाबलतन कुछ माँ ये बोलते कि देखो मेरे बेटे बार बार बुखार आता है, बार बार नजला आता है। बाजू वाले जो पड़ोसी है या भाई के लड़के, वो आइसक्रीम भी खाता है, रात भर घूमता है, दिन भर रात भी नहाते, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरे बच्चे थोड़ा भी अगर हवा लग गया या कोई भी, ये बार बार हमको माँ लोग शिकायत करते रहते, वो बच्चा ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा क्यों। तो कभी कभी वो बच्चे बलगमी होने का चांसेस है, दूसरे बच्चे साफरा भी होने का चांसेस है, तीसरे बच्चे की मिजाज सौदा का गलबा हो गया, तो जल्दी ये चीजें मुतासिर नहीं होते। ये तुमको समझाना जरूरी है माँ को, क्योंकि तुम्हारे बच्चे का मिजाज बलगमी है। तुम्हारे बच्चे को ज्यादा खट्टी चीज मत खिला, कि बच्चे ज्यादा अचार वगैरह कैरी वगैरह खाते रहते। तो उनको ये पहले बताओ कि तुम्हारे बच्चे का मिजाज ये, क्योंकि खुद को मिजाज पहले बताओ माँ की मिजाज क्या, और उसके बाद तुम्हारे बच्चे का मिजाज बलगमी है। बलगम नहीं समझता, उनको पानी से मिसाल दो, तुम्हारे बेटे का मिजाज पानी है, तो पानी पानी से जल्दी मुतासिर हो सकते। बाजू वाले की घर के जो बच्चे या तुम्हारे चचा का, भाई का या फ्रेंड्स का बच्चा की मिजाज आग है, सफरा है, उसके लिए पानी अच्छा है, इससे उसको तकलीफ नहीं दे रहे। तो ये नहीं कि जब देखने ने वो कोई इन्फेक्शन आया है आपको, हमेशा वही हमारा डायलॉग रहते हैं डॉक्टर साहब, बार बार बुखार इसलिए आ रहा है कि वो इन्फेक्शन आ रहा है और वो एलर्जी की वजह से। ये एक दो जवाब के अलावा तुमको हम या हमको कोई जवाब देने को नहीं रहते पेरेंट्स को। डॉक्टर साहब मेरे बेटा बार बार क्यों बुखार है, तो समझाओ बेटे कि मिजाज के एतबार से वो जो चीज खा रहा है मुसलसल। मेरे कभी कभी पेशेंट आते हैं, बार बार शिकायत आते। कभी एक बार पेशेंट आया दुबई से, पेशेंट बच्चे तो 2-3 बच्चे, बोलते जब देखो इनको हमेशा डॉक्टर साहब भूखा ये रहते, क्या नाम उसका, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, इनको अमोक्सिलिन और एंटीबायोटिक, इवन स्टेरॉइड तक डॉक्टर चलाते रहते। डॉक्टर साहब मैं तंग आ चुकी, इसको कुछ करो। तो मैंने उनसे पूरा हिस्ट्री लिया बच्चा क्या खाता है, क्या पसंद, कि मैं मिजाज भी जानना चाह रहे क्या खाता है। तो दुबई वाले तो उनको सुबह दोनों ऑफिस जाने वाले माँ बाप, उनको पास इतना टाइम नहीं रहते बच्चे को, मतलब कोई ब्रेकफास्ट अच्छे बना के। तो लोग क्या करते, जब देखो मैगी मैगी बना के देते। बच्चे को भी मैगी पसंद है क्योंकि इसके अंदर अजीनोमोटो ज्यादा डाला रहता है, तो वो उसके अंदर एक एडिक्शन रहता है। तो अजीनोमोटो खा के, जो जिसके अंदर अजीनोमोटो ज्यादा रहते हैं, और खास तौर से जो
नूडल्स पास्ता वगैरह खा के एक हल्का खट्टापन रहता है, तो ये लोग थोड़ा सा नींबू वगैरह निचोड़ के सुबह सुबह मतलब वो खा के निकल जाते। तो मैंने उनको बोला तुम एक काम करो, आज से एक ट्रायल के तौर पे तुम उनको है ना ये जो नूडल्स बंद करो। कभी कभी टूर वगैरह जाने के टाइम पे खाने के टाइम पे का नूडल्स बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बच्चे अडॉप्ट करने के बाद में बच्चे फिर बाद में दुबई जाने के अंदर मुझे कॉल आया, डॉक्टर साहब जब से मैंने मेरे बेटे को जो नूडल्स बंद किए उसके अंदर उसको नजला ही नहीं आया। तो कभी ये पूछा करो कि क्या हम नहीं सोचते कि अभी ये पेडियाट्रिक में बुखार सर्दी बुखार लेके आया, अभी ये क्यों पूछूं बच्चे को क्या पसंद है, बच्चे कितने बजे सोता है, बच्चे दोपहर में स्कूल से आके नहाता है क्या, बच्चे की पसंदीदा चीज क्या, ये सब पूछने हम लोग बोले यार ये सब क्या यार इतना डीप हिस्ट्री क्यों ले। डीप हिस्ट्री जरूरी कि बच्चे को मिजाज जानना है, मिजाज जानने के लिए माँ को समझाना है कि तुम्हारी बेटा की मिजाज ये उसको ध्यान रखो, नहीं तो तुम जिंदगी पर मेरे पास आते रहेंगे, मैं जिंदगी पर इनको मॉक्स और पैरास्टामोल सिरप खिलाते जाएंगे। और माँ बाप क्या बोलते हैं मेरे घर पे इतना डब्बी और ढक्कन और बोतलें हैं कि डॉक्टर साहब आपको चाहे तो मैं कंपनी को दे देता, इतनी सारी मेरे घर पे बोतल पड़ा हुआ है मॉक्स की और पैरास्टामोल सिरप की, क्योंकि हमने उसकी तरफ नहीं जा रहा। अगर तुम्हारी कंसेप्ट परफेक्ट है, इनकी रुतूबत की वजह से इनको बार बार टॉन्सिलाइटिस हो रहा है, इस टॉन्सिलाइटिस की वजह से एडिनोइड की इन्फेक्शन की वजह से उसको बुखार आ रहा है, इसको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है, इसको ब्रोंकाइटिस हो रहा है, फेरिंजाइटिस हो रहा है, इस इटिस की वजह से, इस इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर बार बार उसको बुखार आ रहा है, तो बुखार को रोकने की बजाय, टिस को रोकने की बजाय याबिस गर्म खुश्क दवा या गर्म खुश्क तदाबीर, तदाबीर वो लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए, सिर्फ गिजा नहीं तमाम तदाबीर, क्योंकि आजकल के बच्चे पुराने जैसे बच्चे का नहीं, फिजिकली खेलता नहीं। अगर पूछे बच्चे खेलता क्या, बच्चा बहुत खेलता, किधर फुटबॉल खेलता, किधर मैदान में नहीं मोबाइल में, ज्यादातर बच्चे खेलता है मोबाइल में। अब पुराने जैसे खेल कूद नहीं, बाहर नहीं आते, माँ बाप बिठा के रखते कमरे के अंदर, पढ़ो 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 बोल के हिलने दे नहीं देते, तो बच्चे के अंदर मजीद रुतूबत बढ़ते रहते। अब बच्चे कैसे रहते, जैसे नए नए नवजायद बच्चे जो पैदा होने के एक महीना 2 महीने के, आप देखते हैं कि कितने हाथ पैर मारते रहते बच्चे लेटे लेटे, क्योंकि उसको चलने नहीं होते फिरने नहीं होते, लेकिन लेटे लेटे वो एक्सरसाइज करते रहते, उसके हाथ पैर मूवमेंट रहते, 24 घंटा हिल रहा है हिल रहा है हिल रहा है हिल रहा है। कभी हमने गौर किया है कि उस हिलने की जो रेशियो है वो हमने मेंटेन किया है क्या, हमने जिंदगी में कभी वो हरकत को मेंटेन किया नहीं है। तो कभी भी बच्चे को कुछ बोलने के टाइम पे अगर आपको कुछ पूछना भी है, तो असबाब सित्ते जरूरिया को दिमाग में रखो, बच्चा कहाँ रहते, वहाँ की हवा का मिजाज, वहाँ की हवा का रुख, किस कमरे में को सोता है, किधर किस रुख सोता है, सब क्योंकि उस बच्चे को या उस मखलूक को या दुनिया की कोई भी चीज सबसे पहले मुतासिर होते हैं हवा से। सेकंड सवाल पूछो माकूल और मशरूब, बच्चा क्या खाता है क्या पीता है, कौन सी चीज पसंद करता है, मीठा ज्यादा खाता है, क्योंकि बच्चे ज्यादातर मीठा खाते हैं या खट्टी चीज खाते हैं। बाद में बच्चे की फिजिकल हरकत पूछो, चलता है क्या फिरता है क्या, 24 घंटा मोबाइल में या क्या टीवी के सामने है क्या पूछो, या उसकी नफसियाती हरकत पूछो, ये कितने बजे सोता है, उसकी मतलब कॉन्स्टिपेशन की शिकायतें पूछो। आजकल जो बच्चे को भी कॉन्स्टिपेशन की अमराज बहुत ज्यादा हो गए क्योंकि फूड की अडल्ट्रेशन में। तो कभी भी आपको कोई हिस्ट्री लेना है, तो आपको कोई दिमाग में कोई चीज रोक रहा नहीं, मैं किस सिस्टम से किस चीज से मैं किसी को हिस्ट्री लूं, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन एक फॉर्मेट है असबाब सित्ते जरूरी दिमाग में रखो। पहले पूछो कहाँ से आया, किधर है घर, घर के बारे में थोड़ा पूछो, हवा के बारे में जानकारी की, या किस मौसम में तुम्हारा पास पेशेंट है, सर्दी में आए कि गर्मी में आए कि। बाद में पूछो माकूल मशरूब के बाद, फिर बच्चे की हरकत के बारे में पूछो, फिर बच्चे की नफसियाती हरकत के बारे में, फिर नौम एग्जा के बारे में पूछो, फिर इतिबास इस्तिफरा के बारे में पूछो, ताकि मुकम्मल हो जाए पेशेंट की में कोई चीज न छूटे, उसमें पर्सनल हैबिट भी आ गया क्या का। तो बेसिकली याद रखो पेडियाट्रिक के अंदर फंडामेंटल एस्पेक्ट याद रखो, रुतूबत की वजह से ताफुनी अमराज ज्यादा होता है। इसका मतलब दूसरा कोई नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं, बच्चे को कंजेनिटल डिसऑर्डर हो सकते हैं, दूसरे भी बड़े बड़े डिजीज हो सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम, जैसे कोई कार्डियक पेशेंट, जैसे कोई डीवीडी ट्रिपल वेल डिसऑर्डर, या कोई ब्लॉकेज या अंजेना या इस्चेमिक अटैक बोल के बच्चे बहुत कम आता है, या दूसरा कोई पाइल्स की शिकायत लेके तुम्हारे पास बच्चे थोड़ी आते तुम्हारे अंदर। बाकी कोई भी डिजीज उठा के देखो, इवन फिब्राइल कन्वल्शन को भी आप गौर फिक्र करके देखो, जो बच्चे में खास होता है। व्हाट इज फिब्राइल कन्वल्शन,
बच्चे को जरा भी बुखार आ गया तो कन्वल्शन आ जाता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज होमोसिपियन। वो हर बच्चे को नहीं होते, कुछ बच्चे को 100 के ऊपर भी अगर बुखार गया तो बच्चे को तो ये फिट्स नहीं आते, कुछ बच्चे को 99 में भी बुखार आ गया तो फिट्स आना शुरू होते। वो खास तौर से जिस बच्चे के अंदर बलगमियत और रुतूबत ज्यादा रहते हैं उसके अंदर ज्यादा ताफुन, मतलब ये तशन्नुज होता है। जैसे आपको मैंने मिसाल दिए थे इलेक्ट्रिसिटी की मिसाल, इलेक्ट्रिसिटी किधर से सबसे तेज भागता है, इलेक्ट्रिसिटी भागने के लिए एक मीडिया की जरूरत पड़ती है। रुतूबत एक बेहतरीन मीडिया है, इसलिए गीला या वेट लकड़ी, सूखा लकड़ी में फर्क है। सूखा लकड़ी से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, अगर तुम गीला करके कोई इलेक्ट्रिक पोस्ट के अंदर या कोई वायर के अंदर या प्लग के अंदर टच करके देखो, आपको फौरन शॉक मारेंगे, आप गिर जाएंगे। यही फिलोसफी फिब्रिल कन्वल्शन में है। बच्चे के अंदर अगर रुतूबत आ गया तो बच्चे के अंदर पूरी की पूरी कन्वल्शन आ जाती है। पूरी ट्रेन जा रहा है, किसी की मोबाइल ये बंद करो, म्यूट करो अब्दुल्ला। तो वो क्या होता है कि उसके अंदर वो चीज हरियाणा की बस है यार। फिब्रिल कन्वल्शन होने, किसी ने पूछा, किसी भी पूछ के देखो सवाल, ये हेल्थ क्लिनिक एंड हिजामा। तो लग रहा कुछ अगर सपोज माइक अनम्यूट हो गया। कोई बड़ा पेडियाट्रिक से पूछो कि फिब्रिल कन्वल्शन की वजह क्या है मॉडर्न के एतबार से, तो उन लोग क्या बोलेंगे, बच्चे की सरफेस एरिया बहुत कम है बड़ों के मुकाबले, सरफेस एरिया यानी कि स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट, तो छोटे से किस्म की बुखार आने के बाद में ये प्रॉब्लम है। तो एक सवाल, दूसरा एक सवाल पूछ के देखो फिर, हर बच्चे में क्यों नहीं होता, तो उनकी जवाब नहीं आता, हर बच्चे में क्यों नहीं फिब्रिल कन्वल्शन, कुछ बच्चे कितने भी बुखार आने दो। तो याद रखो दिस इज एंडरली रुतूबी है, क्योंकि कुछ जगह पे खास तौर से ऐसी वर्ड लिख के रखे, रुतूबी वर्ड पब्लिक जानता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूमोनिया, न्यूमा मतलब ग्रीक वर्ड है, न्यूमा मतलब एयर से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पे रोमैटिक डिजीज या रोमेटोइड या रोमैटिक रूमा का मतलब ही है बलगमी, वो नाम से ही बलगमी अमराज लिख के रखिए ग्रीक के इतिबार से, लेकिन कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं करते, बलगमी अमराज ही बोला वो, रोमैटिज्म या रोमैटिक फीवर ग्रीक वर्ड है। एक तरफ हमारी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल भी किया और उस चीज को मानता भी नहीं। बहरहाल यहाँ याद रखो रुतूबत की वजह से फिब्रिल कन्वल्शन होती है। और बच्चे को कोई एक्सीमा आ गया तो ज्यादातर एक्सीमा देखो, उठा के देखो बच्चे में कुछ जगह पे नारे फारसी को सफरावी बीमारी भी बता, कुछ बच्चे को इन्फेक्शन होके बच्चा कुछ जाता है, फिर वो सुपर इन्फेक्शन हो जाते हैं और हमेशा बच्चे खुजली लेके आते हैं। तो खुजली का भी ध्यान रखो कि हर जगह पे गर्म दवा, हर जगह पे मुसफ़्फ़ी खून बच्चे में नहीं चलते। बच्चे में मुसफ़्फ़ी खून की कंसेप्ट मत रखो, अगर मुसफ़्फ़ी कॉन्सेप्ट की कंसेप्ट रखेंगे तुम, बच्चे की खुजली में भी, जवान की खुजली में भी, बूढ़े की खुजली में भी एक जैसी दवा, साफी मसाफी माजून इस्पा अब्बे मुसफ़्फ़ी खून, ये चलाते रहेंगे। बच्चे को मेरे जो मतलब की मामूल में सबसे ज्यादा मैं चलाता हूँ पुरस्कुश्ता गावदंदी, उसकी वजह कि वो एक किस्म का नेचुरल कैल्शियम भी है, वो उसका मिजाज सर्द खुश्क है, वो तो ज्यादातर बलगमी अमराज में भी ये काम करता है, रुतूबत को भी वो कम करता है, और वो साथ साथ में ये क्या होते हैं, ये कम भी हो जाते हैं, मतलब ज्यादा खुजली भी। आजकल एक अक्सर जो पेशेंट आते हैं अपने पास, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस ऐसा है कि स्किन पूरी की पूरी ड्राई हो जाती है, और उसको इलाज करते करते एटोपिक डर्मेटाइटिस कम हो जाते तो पेशेंट को, बच्चे को अस्थमा शुरू हो जाता। तो पुराने जमाने में कुछ पुराने वाइद लोग, हकीम लोग बोलते थे कि इनकी एक्सिमा सही मत करो क्योंकि उसको अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएंगे। अस्थमा को पूरा मुकम्मल अगर इलाज करेंगे तो इसका एक्सिमा स्टार्ट होते हैं। पहले हमको ये गौर मतलब हमारे दिमाग में ही नहीं था, आजकल हमको अक्सर देखने को मिलते हैं, जैसे एटोपिक डर्मेटाइटिस कम हो गए तो ये स्टार्ट होते, ये कम हो गए तो उसकी भी वजह रुतूबत है। जब आप एक्सिमा के लिए दवा दे रहे, ठंडा दवा दे रहे मुसफ़ियात के तौर पे, 1 2 3 महीना पेशेंट को मोर एंड मोर बारी तरह तब दवा दिया दिया दिया, बाद में पता चला वीजिंग स्टार्ट हो गया। अब वीजिंग के लिए हम क्या देंगे, गर्म दवा देंगे, एक्सट्रीम गर्म दवा 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 दे दे के एक वक्त ऐसा आएंगे खुजली शुरू हो जाएंगी। तो दोनों के बीच में रख के इलाज करना चाहिए। ये अक्सर आपके साथ आता होगा कि एटोपिक डर्मेटाइटिस कम होते, नजला शुरू हो गए तो बच्चे माँ बाप आके बोलते बेटे का तो खुजली कम हो गई लेकिन अभी छींके शुरू हो गए, छींके बंद हो गया तो बोलते कि स्किन डिजीज शुरू हो गई। तो यहाँ ध्यान रखो, बच्चों को हमने बेसिकली मालूम पड़ा कि सबब बच्चे के अंदर ज्यादातर रुतूबत है,
اس کا مطلب یہ نہیں کہ بچے میں خشکی کا بھی بیماری، حرارت کا بھی، لیکن بیسیکلی اوور آل کلی طور پہ دیکھیں گے، کلی طور پہ پیڈیاٹرک ڈیزیز میں زیادہ تر تعفنی امراض ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمارے کلینک میں مطلب میں کیا دوا رکھنا چاہیے اور کیا، تو یہ معلوم پڑا رطوبی. پھر رطوبت کی سمٹمز کیا، میں نے بتایا رطوبت کی سمٹم فیور یا تاف. باقی بہت سارے رطوبتی امراض اور بھی آتے ہیں، جیسے کہ ذیل القلم ہے، کھانا کھاتے سنڈاس بھاگتے کچھ بچے، وہ ذیل القلم ہے. کچھ لوگ اس کو بولتے ہیں IBS کا مطلب اریٹیبل باول سنڈروم. بچے میں بھی ہوتا ہے لیکن بڑوں کے اتنا نہیں آتے. بچے میں کیا اریٹیشن ہو سکتا ہے، بچے کو کیا ٹینشن ہو سکتا ہے، بچہ ہی ہے. لیکن وہ زیادہ تر رطوبت کی وجہ سے. بچے کبھی کبھی بستر میں پیشاب کرتے ہیں، وہ بھی رطوبت کی وجہ سے. بولے فراش کہتے ہیں جس کو اندر بستر پہ پیشاب جو کرتے ہیں، وہ بھی رطوبت کی وجہ سے. سوری. تو بچے کے اندر نسیان کی شکایتیں آ رہے ہیں برودت کی وجہ سے. بچے کانسنٹریشن کم ہو رہا ہے، جلدی جلدی اس کا مطلب ادھر سے ادھر اس کی کانسنٹریشن ہٹ رہا ہے، وہ بھی برودت کی رطوبت کی وجہ سے. تو آپ واضح طور پہ تعفن کو چھوڑ کے یا اسکن کو چھوڑ کے یا دوسرے کوئی چیز کو چھوڑ کے دیکھو تو بھی اس کی وجہ رطوبت کا ہی ہوتا ہے. کبھی کبھی گیسٹرائٹس ہو گیا، بار بار فوڈ پوائزننگ ہو رہا ہے، کچھ بھی الٹا سیدھا کھایا، بچے کو لوز موشن ہو رہا ہے، بچے الٹی کر رہے ہیں، یہ بھی رطوبت کی وجہ سے کوئی نئی چیز کھایا ہوگا، وہ تعفن ہو کے بڑھتے جا رہے. تو یہ تمام چیز کو ایک ہی چیز پہ، ایک ہی پوائنٹ پہ ہم پہنچ جاتے ہیں. اور یہ تو سبب ہو گیا. اور سمٹم وائز بھی دیکھیں گے آپ، جتنے بھی پیڈیاٹرک سمٹم اٹھا کے دیکھو، سیبیان سے لے کے فیور ہو، سب چیز کے اندر وہ سبب ہم کو سمجھ میں آئیں گے رطوبت کے. اب علاج کے ایک مسئلہ آتا ہے، علاج کے مسئلے میں بھی علاج تو ضد اگر آپ کر رہے تو ظاہر سی بات علاج ضد بھی حساب سے رطوبت کو کم کرنے والے خشک دوا چاہیے. اب ایک کنفیوژن یہ آئیں گے، ڈاکٹر صاحب خشک تو ہم دو طریقے سے لا سکتے ہیں. ہماری جو خشکی سے ہم علاج کرنا چاہ رہے ہیں، خشکی تو حرارت کے ساتھ بھی ہے، خشکی تو برودت کے ساتھ بھی ہے، اس میں کون سی استعمال کروں؟ یہ اگر کنسپٹ ہر جگہ پہ یہی آتا ہے، یہ کنسپٹ ہمارا کلیئر ہو گیا تو ہم جیت گئے. کیونکہ ہم کو مانے فلانا جگہ پہ مجھے خشک کرنا ہے یا تحلیل کرنا ہے، خشکی لانا ہے، تو خشکی ہار خشک بھی ہے، صفراوی ہے، آگ سے بھی خشک کر سکتے، اور سرد خشک بھی ہے، اس سے بھی میں خشک کر سکتا ہوں. تو یہاں کیا دوا استعمال کرنا، دیٹ از ویری امپورٹنٹ. سپوز بچے کے مزاج ایک دم بلغمی ہے اور دموی ہے، تو خاص طور سے اگر بلغمی ہے تو تم بغیر کوئی ٹینشن لے کے اس کو ہار یا بیس یعنی کہ صفراوی یعنی آگ گرم دوا استعمال کر سکتے، پیشنٹ میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گی، کیونکہ اس کے اندر بارد رطب مزاج کی مریض بھی ہے، بارد رطب کی سمٹمز بھی ہے، بنداز دے سکتے. کبھی کبھی بچے صفراوی ہو سکتا ہے. اب صفراوی کو اگر بلغمی امراض ہو گیا تو دھیان رکھو کہ صفرا کو ہم صفراوی لڑکے کو بلغمی امراض ہو گیا تو پوائنٹ نوٹ کرو، صفراوی بچے کو بلغمی امراض، صفراوی بچے کی صفراوی مزاج تم بدل نہیں سکتے کیونکہ وہ انہیریٹڈ ہے یا اس کو جینیٹک ہے، اس کی بلغمی کو صحیح کرنے کے کام، تو اس کے مزاج مت بدلو. تو ہم کیا کریں، اگر اس کو ہار خشک دوا دیا تو پرابلم ہو سکتے ہیں. تو ابھی ہم کیا کریں گے، اس کو سرد خشک دوا دیں گے، سرد خشک، کیونکہ وہ صفراوی بچہ ہے. تو ہم کیا دیں گے، اس کو شربت خسخس دیں گے، کہ مزاج کیا ہے، سرد خشک ہے وہ، کیونکہ شربت خسخس نزلے میں استعمال کرتے، افیون جس کو سرد خشک چوتھے درجے کی اب نزلہ میں لوگ سب وغیرہ، مطلب جیسی چیز کے اندر جو استعمال کرتے، کوکنر وغیرہ جو استعمال کرتے سرد خشک ہے. جیسے پٹکری ہے سرد خشک ہے، جیسے اما جدید ہے سرد خشک ہے، گودندی ہے سرد خشک ہے. تو صفراوی بچے کو آپ کو لگ رہا ہے صفراوی مرض ہے یا صفراوی بچے کو یہ پرابلم ہے، تو یہ حساب سے کیونکہ اپنے کو آپشن مل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپشن دیا ہے، دو آپشن ہر جگہ. اگر ایک آپشن رہتا ہم کنفیوز رہا ہوتا کہ اس بچے کو میں کیا دوں. اگر اس بچے کو مطلب صفراوی بچہ ہے، اس کو بلغمی ہو گیا، میں نے ایک دم تیز دوا دیا، بچے کو بلغم دور ہو سکتے لیکن بچے کو دوسری تکلیف ہو سکتے، اس کو ہم سائڈ افیکٹ کرتے.
हम कहते हैं यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कोई भी जो अकादमी की हरमस अकादमी के आज के बाद में अगर कोई ये लफ्ज इस्तेमाल किया यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं है, तो समझना ना यूनानी सीखे तुमने न फिलोसफी सीखी। दुनिया की कोई भी चीज को अगर इफेक्ट है तो साइड इफेक्ट है, याद रखना। पानी दुनिया में सबसे बेजर चीज है, उसमें किसी को हम बोलते हैं उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं। मैं बोलता पानी को भी साइड इफेक्ट है। पानी अगर बेवक्त अगर पी लिया या बेइतदाली से पी लिया, पानी आपको तकलीफ देंगे। ज्यादा से ज्यादा पानी पीने से किडनी भी खराब हो जाता है। बलगमी अगर रात में उठ के पानी पिया तो नजला हो सकते हैं। सफरा को पानी पीना अच्छा है। यानी कि जो चीज जिसमें तो हम बोल सकते हैं अगर आप कस्टमाइज करके दवा देंगे, यानी कस्टमाइज करके दवा देंगे तो आपको ज्यादातर तकलीफ नहीं होगी कि आपको जान को आपके एतबार से हमने दवा दिया तो आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। मैं मिजाज जानता है दवा की, लेकिन आपका मिजाज नहीं जानते तो आपको तकलीफ देंगी। आपके मिजाज मैंने जाना लेकिन मुझे दवा की मिजाज नहीं मालूम तो भी तकलीफ देंगी। तो याद रखना कभी ये नहीं करने का। यूनानी अगर किसी ने पूछा यूनानी की क्या खूबी है, कोई पढ़े लिखे आदमी पूछे, तो ये जवाब मत दो जो सुन सुन के हम थक चुके यूनानी में साइड इफेक्ट नहीं, यूनानी नेचुरल मेडिसिन से बनते, ये हमारे प्रोफेसर हमको सुनाया गया, ये गलत है। यूनानी हाईली कस्टमाइज्ड है। अलाउद्दीन को जो दवा लिख के देंगे वो कभी वो दवा उस डॉक्टर अब्दुल्ला भी आया सेम नजला जुकाम लेके, और मेरे पास आदिल डॉक्टर फलाने आदमी भी आया, अलाउद्दीन भी आया, तो दोनों को मैंने मुख्तलिफ दवा देंगे। शायद अब्दुल्ला को मैं शरबत खसखस दिया होगा, मैं अलाउद्दीन को फेल्गोनिल सिरप दिया होगा। इसलिए आप देखते हैं यूनानी में बहुत सारे कप सिरप है, नजलोरिड है, अरमासलिन है, शरबत खसखस, कब्लिक पके भी पूछते इतनी सारी सिरप क्यों। मैं बोला मेरी हर दवा में 4-4 प्रोडक्ट, जैसे मेरे पास डियाबिटीज के लिए मोर देन 6 प्रोडक्ट है, क्योंकि मिजाज के एतबार से कुछ दवा बोलते डॉक्टर साहब आपने जो दवा दिया वंडरफुल काम किया, जब वही दवा दूसरे को देते बोला बिल्कुल इफेक्ट नहीं। हम लोग दवा के ऊपर इल्जाम लगाते डॉक्टर साहब आपकी दवा कुछ काम नहीं कर रहे, ये नहीं बोलते तुम्हारी दिमाग काम नहीं कर रहे या मेरी डायग्नोसिस काम नहीं कर रहा। दवा के ऊपर डायरेक्ट हम लोग ये कर लेते कि दवा दाखिल हुआ असर करना ही करना, ऐसा कैसे थोड़ी होता है। दवा का मिजाज के हिसाब से दवा काम करते हैं, कंपनी के नाम से थोड़ी दवा काम करता है। तो मिजाज के एतबार से जब ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन है। गर्म आपको खुश्की लाना है बच्चे में, क्योंकि अगर एक्सिमा है तो खुश्की एक्सटर्नल भी ला सकते हैं, खुश्की इंटरनल भी ला सकते हैं, क्योंकि वैसे हमने सीख कर इंटरनली खुश्की लाने के लिए खुश्क के लिए सफरा भी इस्तेमाल कर सकते, सौदा भी इस्तेमाल कर सकते। ओके, अगर सपोज बच्चे का आपको डायग्नोसिस परफेक्ट हो गया कि इस बच्चे के अंदर रुतूबत की गलबा है, इसके वजह से इसको प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमने ये खुश्की ला ली। अब आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर खुश्की की वजह से तमाम प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि एटोपिक डर्मेटाइटिस है या डैंड्रफ है या फंगस वगैरह है, तो वहां हमको तरी चाहिए मुरगनियात या मुरतबात या रुतूबत पैदा करने वाली चीज। तो रुतूबत हर रतब भी है, रुतूबत बारिद रतब भी है। अगर बलगमी बच्चे को याद से गौर करो, बलगमी बच्चे को अगर दमी अमराज हो गया, छोटी छोटी टिप्स है, बलगमी दमी बच्चे को बलगमी बच्चे को दमी अमराज हो गया, तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है मालूम, रुतूबत है। यानी ताफुन बहुत जल्दी बढ़ जाएंगे, यानी कि न्यूमोनिया में जल्दी दाखिल हो सकते हैं। समझा, एक दम्बी बच्चे को भी अगर बलगमी अमराज हो रहे, एक बलगमी बच्चे को भी दम्बी अमराज हो रहे, तो ताफुन जल्दी जल्दी फैलेंगे क्योंकि इसके अंदर रुतूबत कॉमन है। तो ऐसी जगह पे बच्चा बलगमी है, उसको दम्बी बच्चा बलगमी दम्बी अमराज होता, हम बोलेंगे इसको दम्बी को रोकने के लिए सर्द खुश्क दवा चाहिए, तो सर्द खुश्क दवा इस्तेमाल करो। अगर बच्चे सफरा से भी इलाज कर सकते कि ध्यान रखो इसकी कॉमन फैक्टर क्या है और उसके ऑपोजिट में क्या है, बस इतना याद रखना, कंफ्यूजन होने की सवाल ही नहीं। बच्चा क्या है, उसकी बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, उसकी मिजाज क्या है, उसके बाद में डिसाइड करो मैं जो दवा इस्तेमाल कर रहा हूं। मेरे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या है, खुश्की के लिए भी 2 ऑप्शन है, तरी के लिए भी 2 ऑप्शन। तो ये अगर ऑप्शन आपने सीख लिया तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, कभी परफेक्ट इलाज कर सकते। नहीं तो क्या होते, बच्चे आए, बच्चे थोड़ा सा खुजली था
तो तुमने जो दवा दिया उसके अंदर गरम तर दवा था, तो तरी बढ़ गया, और दूसरा सही था, यानी कि उसको उसको गरम तर दवा देने की जगह उसको सर्द तर दवा दे दिया, तो वो तर की जगह और तर हो गए। तो डॉक्टर साहब मेरा थोड़ा बहुत था तो और बढ़ गया। हमने जब ये इस्तेमाल किए थे होम्योपैथी दवा, उससे भी जो बढ़ते दवा खाने के, तो पूछते कभी यूनानी खाने से पहले बढ़ता है क्या? पहले थोड़ी बढ़ता है, अगर इलाज भी जिद करो तो कैसे बढ़ेंगे? तो कभी भी इलाज बिल मिसल आ जाती है इसके अंदर। तो इलाज बिल मिसल की जैसी जो कंसेप्ट हमने दवा भी दी है मिसल, और इसका बीमारी भी मिस लिया, उसके मिजाज में मिसल आ गया, तो कभी बीमारी और बढ़ जाता है। तो समझ में याद रखने का प्रॉब्लम है। तो कभी कभी मैं क्या करता है, कभी कभी क्रॉनिक डिजीज को मुझे समझ में नहीं आ रही बीमारी क्या है, तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं यूनानी में नुस्खे खलेल शिकम दे देते। क्यों? मुझे अभी तक मिजाज, पेशेंट का भी मिजाज समझ में नहीं आ रहा बीमारी का, तो हम लोग क्या करते हैं खलेल शिकम देख के भेज देते, एक हफ्ते के अंदर 3 दिन के बाद में आ जाओ, ताकि उसके मिजाज में थोड़ा चेंजेस आके हमको जल्दी नुमायन तौर पे कोई सिम्टम देखने को मिले, ताकि हम ये कंफर्म करें। मैं क्या करता, कभी कभी कुछ बच्चे को, मुझे माले मेरी मशरूबे आमले का मिजाज ये है सर्द खुश्क है, तो मैं समझता हूँ कि सर्द खुश्क ये अगर समझो, नहीं सर्द खुश्क इसके ऑपोजिट के दमी अमराज में काम करेंगे। चलो मैंने क्या किया, कोई चीज को खुजली आ रहा है, एक्सिमा हो रहा है, मुझे कंफर्म हो गया कि ये दमी अमराज है, तो मैं इसके ऑपोजिट मिजाज है सर्द खुश्क, मैंने मशरूब आमला लिख के दे दिया। जो पढ़े लिखे हकीम, जो अनपढ़ आदमी क्या लिख के देंगे, यार ये तो स्किन डिजीज है, चलो इसको खून सफा दे देते, या मुसफ़िया खून देते, या साफी देते, या मसाफी देते। ये अनपढ़ मॉडर्न मेडिसिन, मॉडर्न डॉक्टर के हिसाब से, मॉडर्न हकीम, रियल हकीम क्या करेंगे, अरे यार इसको सब मुसफ़ियात की क्या जरूरत है, तो दम्बी खुजली लग रही है, इसको ऑपोजिट क्या सौदा, सर्द खुश खसखस तो शरबत खसखस मशरूब आमला डॉक्टर साहब जब से खाया अच्छा, मतलब मेरी पूरी फोड़े फुंसी बंद हो गए, मेरे पिंपल्स भी कम हो गए। अगर आप उस जगह पे दूसरी कोई दवा देंगे, जैसे कि उसके अंदर थोड़ा सा खुश्की या कोई चीज बढ़ गया, तो मरीज का बीमारी बढ़ने का चांसेस। तो जब आपकी ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो जाएंगे, तो आपको मालूम पड़े अरे बाबा इतनी सारी जो पीडियाट्रिक की जो पूरी दुनिया है, इतनी सादगी से हम उसको डील कर सकते हैं अगर इस तरीके से। सिर्फ ये पीडियाट्रिक की बात नहीं है, ये जब आप जितने डीप में जाएंगे उतनी सादगी आपको समझ में आएगी, क्योंकि दुनिया की जितने भी साइंस है, दुनिया की हकीकत है, या दुनिया की जो कुदरत है, वो अल्लाह ताला ने सादगी में रखा है। हमने क्या किया, हमने हर चीज को कॉम्प्लिकेटेड कराया साइंस के नाम पे, क्योंकि अकल जो है ना, अकल हमेशा दलील मांगता है, और अकल हमेशा हमको सेफ रखने की कोशिश करते है। क्योंकि कोई चीज करने को जा रहे तो पहले मनफी चीज दिखाएंगे, कौन? दिमाग, ये मत करो, वो मत करो, तुमको तकलीफ देंगे, तुमको राहत नहीं मिले, तो हर चीज को नेगेटिव से सोचता है हमको ब्रेन, कभी पॉजिटिव कभी डेयरिंग, क्योंकि दिमाग ये चाह रहा है कि दिमाग का ड्यूटी है मेरी आका को, मेरी बॉस को सेफ रखो। तो क्या करते हर चीज को बीमारी, हर चीज ब्रेन ये करते कि हर चीज को नाम रखते, जो नाम रखते ताकि तुम्हारा काम खत्म हो। ये अजमल, चलो दिमाग ने बोला ये अजमल है, बाद में अजमल के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि मैं जान लिया कौन है ये, अजमल है। फिर अजमल के बारे में जानने की क्या जरूरत, अगर मैंने नाम नहीं रखा अजमल है या कोई इंसान है, कोई कुछ नहीं रखा, तो क्या करेंगे दिमाग को सोचना पड़ती है क्या चीज आए मेरे सामने, इसकी क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है, ये क्या मखलूक है, मैंने खोज जानने की कोशिश करते इसके बारे में। लेकिन दिमाग ने क्या किए, दिल के सामने आके दिल को बंद कर डाला, वो कैफियत ही खत्म कर डाला। दिमाग क्या बोलते कि ये फलाने चीज है, ये फलाना आदमी है, ये फलाने शे, तो हम लोग क्या करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड ये बोलते कि ये सब चीज के बारे में मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं ऐसी बीमारी को भी हमने क्या किया, ये फलाने बीमारी, ये फलाने बीमारी, ये फलाने बीमारी, फिर उस बीमारी को जानने की कोशिश नहीं की हमने। ये सबसे बड़ी आज की दौर में मैं समझता हूँ इस सदी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम में, हमने अकल इस्तेमाल करके, अकल हमको एड़ा बनाया, अकल हमने गुमराह किया, क्योंकि तुम हर चीज के बारे में जानता है इसलिए हम जानने की कोशिश नहीं करते। अगर तुम्हारे सामने कोई टेस्ट की चीज आई, बच्चे के सामने एक चीज लेके रखी, बच्चे पहली बार देख रहे, तो बच्चे इतनी जुस्तजू के साथ उस चीज को खोलता, देखता, सूंघता, चखता, परखता, उसको जानने की कोशिश करते हैं। बच्चे को पहले से मान लीजिए ये चीज उसको बोल दी, जैसे बड़े बड़े होते जाते तो बच्चे बोलते हैं ये तो क्या है, ये तो ये चीज है, इसमें क्या है।
तो हमने हर चीज को नाम रख डाला। ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। ये हमारे हकीम लोग की कैफियत के एतबार से बोलेंगे, हमने कैफियत को जानने की बात ही खत्म कर दी, क्योंकि हमने नाम रख दिया ये चीज ये है। ये ब्रेन का काम है। ब्रेन हर चीज को अपनी सहूलियत के हिसाब से, कंप्यूटर के जैसे ब्रेन ने दुनिया की हर चीज को याद रखने के लिए, बोलने के लिए, सब चीज की, दुनिया की तमाम चीज को नाम रख दिया। उस नाम से जाना जाता है, ताकि हम जान लिया। अब हम जानने की जरूरत है, नहीं कि हमने मान लिया या अजमल है, फिर मान लिया तो फिर जानने की कोशिश नहीं करेंगे। ये हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ। तो कोई भी बीमारी को नाम से जानने की कोशिश मत करो, कि फिर तुम जानेगा ही नहीं। हाँ, ये तो फिर विब्रेल कन्वर्शन है, मैंने जान लिया तो अपना आपको, हमारा ईगो भी बढ़ जाते, बोलते यार हमने तो जान। अरे तुम जाना ही नहीं। जानने तुम जाना, तुम्हारा दिमाग तुमको धोखा दे रहा है। वो नाम से तुम जान गया है, वो काम से, उसकी कैफियत से तुमसे नहीं जाने। तो उसको क्यों बच्चे को फिब्रिल कन्वल्शन हो रहा है, इस कैफियत से मुतासर हो रहा है, ये जानने की कोशिश करो। तो दुनिया की तमाम चीज को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये एक ऐसी टॉपिक में अगर आप एक एक बीमारी को उठा के देखेंगे, आप इस कैफियत को ध्यान रखो, इतना मजा आएंगे ये ट्रीटमेंट में। मैं समझता हूँ 1 महीने 2 महीने के अंदर तुम बोलेंगे बाबा तुम शहर के नंबर 1 पेडियाट्रिशियन हो गया। माँ बाप आके दुआ देंगे कि डॉक्टर साहब हमने कितने साल से परेशान था, जब देखो बच्चे बीमार पड़े, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन आपके पास आया, 1 साल हो गए, मेरे बच्चे को नजला तक नहीं हुआ, मेरे बच्चे आइसक्रीम भी खाते हैं, ठंडा पानी भी पीता है, सब कुछ करते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू, डॉक्टर साहब जज़ाकल्लाह, डॉक्टर साहब बोलेंगे। ये नहीं जब देखो वही दवा उलट पलट के लिख के दे रहे। क्योंकि जानने की कोशिश करो, मानने की कोशिश मत करो, किसी को भी मत मानो। क्यों मानो? मैं बोलता अल्लाह को भी मत मानो, नाउजुबिल्लाह। अल्लाह को जानने की कोशिश करो। हम लोग ने मान लिया अल्लाह, कोई जानने की कोशिश नहीं करते। किसी को भी मत मानो, जानने की कोशिश करो। सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश करो। ये नाम इतने रख दिया, दुनिया भर की हर चीज रख के, ये नाम रखने वाले साइंस ने आज तक ये नहीं मालूम जो नाम रख रहा वो कौन है। थैंक यू वेरी मच। ओके डॉक्टर साहब। सर जो है उसमें डायरिया और वोमिटिंग यस, अगर हो रही है पीडीएम में, तो उसके लिए क्या किया जाएगा? सुनो, बच्चे के अंदर 17वीं मान के ये सुनिए, 2 किस्म के ट्रीटमेंट में कहीं भी आप इस्तेमाल करो, यानी वो जेरियाट्रिक हो पेडियाट्रिक हो, दुनिया में 2 किस्म की ट्रीटमेंट है। एक सिम्टोमेटिक रिलीफ और एक सबबी और एक अलामती ट्रीटमेंट। सबबी ट्रीटमेंट मतलब रियल प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, दैट इज अ रियल ट्रीटमेंट। जी तो सपोज आपके पास कोई बच्चे आया, आपको इनको डायरिया हो रहा है, तो फौरन आप क्या करेंगे, उसको एकदम हाबिस काबिस दवा देंगे उसके डायरिया को रोकने के लिए। डायरिया को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज क्या है, हमने अब्बे नारकचूर इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमदर्द का एक प्रोडक्ट आता है अब्बे पेचिश, और एक पेच भी आता है, उसके जुज़े आजम के हिसाब से उसके अंदर अफ्यून है। अफ्यून इंतहाई किस्म का हाबिस काबिस और मुजफ्फिफ है, क्योंकि वो दर्जे 4 है। अगर आप जरा समझे, थोड़ा भी एक अफ्यून, एक रत्ती भर, एक राई भर अफ्यून एक दूध में पिला के देखो, मॉडर्न मेडिसिन के 10 गुना सिम्टोमेटिक रिलीफ कर सकते। कि लोमोटिन से बंद नहीं होता। कुछ जगह पे अभी सुबह हो रहे हैं, शायद भांग दे रहे मुर्गी तो अमेरिका का कोई तो नहीं है ना इसमें? एनीवे वो तो फौरन क्या होते हैं कि वो सिम्टोमेटिक रिलीफ से रोक सकते हैं। कभी कभी सिर्फ मैं समझता हूँ बहुत सारी जगह पे जो क्रॉनिक डायरिया के अंदर ओनली मशरूब आमला, कभी कभी कुछ कुछ मरजान, अब्बे मरवारी, या कभी कभी बच्चे को बड़ा है तो कैपराल बच्चे नहीं उगमाल रहे तो राल को तोड़ डालो ऐसे खींच के, उस पाउडर को शहद में खिलाओ, फौरन बंद हो जाएंगी। अगर डायरिया तो वो ये फिर पेशेंट से पूछो या माँ से पूछो ये फूड पॉइजनिंग है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे को फूड पॉइजनिंग का चांसेस होता है। बच्चे क्या खाते हैं, कब खाते हैं, फिर उसके सबब के तरफ जाओ। नहीं तो ऐसा नहीं, तुम कभी कभी क्या हमको एलोपैथी डॉक्टर भी बनना पड़ता है यूनानी के जरिए। मतलब डॉक्टर मरीज बार बार पीछे, मतलब डायरिया हो रहा है, लूज मोशन हो रहे हैं, अब तुम माँ बाप को ये नहीं बोलेंगे डॉक्टर साहब हम लोग तो मुंजिज मुसिल का थेरेपी चलने वाला है, हम सबब ढूंढेंगे, तो बच्चे कोलैप्स हो जाएंगे। तो पेशेंट को बोलो आप राइट नाउ 1 सेकंड में मैं इनके डायरिया रोक सकता हूँ, उसके तरीका ये है। कभी कभी कुछ नहीं, जो ब्लैक टी आता है ना, ब्लैक टी में थोड़ा सा नींबू डाल के पिला के देखो, जो केरला में हमारे गांव में अक्सर जो लूज मोशन के लिए इस्तेमाल कर, क्योंकि ये सफरा को तोड़ता है।
सफरा को तोड़ने वाली कोई भी चीज तुम दे दो तो शायद उसकी डायरिया और ये सब बंद हो जाते। ओके, तो सो सर ये है इसमें तो सर मैनेजमेंट। डायरिया के लिए हो गया सर। वोमिटिंग के लिए अगर बच्चा को मतलब कुछ भी ओरली ले रहा है और उसको तुरंत वोमिटिंग हो जा रही है, कोई एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे? आपकी सवाल थोड़ा सा, मैं हमेशा कहते हैं कि हर सवाल में एक जवाब होता है ना। तो आप सवाल पूछे वोमिटिंग में, एक लैंग्वेज है इंग्लिश, वोमिटिंग में क्या इस्तेमाल करेंगे वो आप यूनानी से ढूंढ रहे हैं, यानी कि आपका सवाल गलत है। आपका सवाल गलत नहीं बोल सकता, आपका सवाल का तरीका सही है। आपका ये हिसाब से अगर देखेंगे हम बोल सकते हैं कि वोमिटिंग किस वजह से होता है। वोमिटिंग 95% नहीं 99% वोमिटिंग की जिम्मेदारी किसके हाथ में होते हैं, मतलब सफरा का। तो वोमिटिंग का जिम्मेदारी सफरा का होता है। तो कोई भी एंटी सफरा कुछ भी नहीं, आप काइनिल सिरप उठा के दो मुंह में, काइनिल सिरप पिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। खाली पेशेंट को बोलना काइनिल सिरप पीने से भी मुझे उल्टी आ रहे, तो पिलाने की जरूरत नहीं का। जो खट्टी चीज मुंह में रख के देखो तो भी उल्टी बंद हो जाती है, उल्टी बंद हो जाए। तो काइनिल सिरप है, काइनिल सिरप दो, काइनिल सिरप दे दो मुंह में रख के तो उससे भी बंद हो जाते। या शरबत जवारिश अनारइन है, शरबत अनार तुर्श है, सफरा शिकम है, शरबत तमरलिंद है। अगर आपको ऐसा लग रहा है ये कुछ नहीं, फूड पॉइजनिंग बहुत खतरनाक हो गया, तो कुछ नहीं, खाली सब्जम को 2-3 कतरा पानी में या कोई ब्लैक टी में पिलाओ तो फौरन करके उसको उल्टी की जो वजह था, अंदर कोई पॉइजनस सब्सटेंस है, वो भी कम हो जाएगी। ओके, हेलो सर। ओके सर, अभी सफरावी मर्द में सर अभी पिछले हफ्ते हमने अमीबियासिस हो गया था बच्ची को, तो वही सिरप पिटनिल से जो है सर बहुत अच्छा रिजल्ट आया है उसका। मतलब सडन रिस्पांस आया उसका उसी दिन, और वो 10 दिन से परेशान था कहीं और किसी डॉक्टर के पास। देखो सिरप पिटनिल इस्तेमाल कराया सर, उसी दिन से उसको आराम हो गया। क्रॉनिक अमीबियासिस के अंदर भी कभी क्रॉनिसिटी अगर इख्तियार कर रहे तो सबब उधर ही मौजूद है, समझा। तो क्रॉनिक अगर है तो सबब स्टिल देयर। अक्यूट कभी कभी क्या होते हैं, अक्यूट डिजीज कभी कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप अच्छा हो जाती है, क्योंकि सबब वहां से हट जाते। ओके, अब ये बताना चाह रहे हैं कि हम अपनी एकेडमी के जो भी हमारे मेंबर हैं उनको ये बताना चाहते हैं कि संडे की क्लास नहीं होगी, क्योंकि संडे में सर नहीं रहेंगे, आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे, इसलिए इसी वजह से संडे में कॉन्फ्रेंस है सर की, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, ये संडे छोड़ के नेक्स्ट कमिंग संडे में फिर क्लास होगी। दूसरी बात, आज कोई क्वेश्चन और करना हो तो आज सर को क्वेश्चन कर सकते हैं, 2 से 5 मिनट का समय सर का और ले लेंगे। सर एक सवाल बता दीजिए मुझे। हाँ, बस एक मिनट। सर एक मरीज में 2 मुख्तलिफ कैफियत के अमराज हैं। हेलो, क्लियर नहीं आ रहा, आवाज क्लियर नहीं आ रहा। सर मैं कह रहा हूँ कि एक मरीज में 2 मुख्तलिफ कैफियत के अमराज हैं, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे? जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस विद अर्टिकेरिया। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस अगर सपोज मिजाज के अंदर मकामी मिजाज है, क्या है, अमराज सादा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर उसकी गर्दन में मतलब मोच आ गया, या गर्दन में नजला हो गया, या गर्दन में बरूदत आ गया, तो वह क्या करो, वो तुम एक्सटर्नली इलाज बिल यद यानी कि तदाबीर के थ्रू मसाज कपिंग वगैरह करो, या उसके अंदर हॉट फर्मेंटेशन करो, या उसके अंदर तेल की कोई मसाज करो। लोकली अंदरूनी दवा देने की जरूरत नहीं। अंदरूनी उसको क्या प्रॉब्लम आ रहा है वो दूसरी मिजाज की तिबार से इलाज करो, एक तरीका ये। दूसरी तरीका, कभी भी जब इलाज करने के टाइम पे अलामत के अंदर जो मुकद्दम है, जैसे तकलीफ ज्यादा हो रहे, उसको इलाज किया करो, जिससे ज्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं। बाद में उसकी दूसरी सेकंड इसके ऊपर है, सफरा उसको ज्यादा तकलीफ देता है तो सफरा को पहले मैनेज करो, क्योंकि सफरा एक्यूट कंडीशन में जल्दी मैनेज हो सकते हैं, बाद में इसको इलाज कर सकते हैं। सर एक केस प्लीज बता दीजिए, उसूल इलाजी पूछना है, दवा मत बताइएगा सर, कि जब हमारे पास सफरावी का बलवा है, मरीज आ रहा है, हमें हिस्ट्री दे रहा है
स्किन में ब्लैक भी है, जान की शिकायत है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ आप क्लियर आ रहे हैं? रही, आपकी हेलो। आवाज बिल्कुल नहीं सुन रही। बोलिए। बहुत लोगों का माइक खुल गया है, इस वजह से आवाज आवाज बहुत कट रही है। सबका माइक बंद करो, सबका सवाल सब पूरा लोग दूसरा अपना हेलो सर आवाज। हेलो हेलो सर सलाम अलैकुम। इस्लाम। हेलो सलाम अलैकुम। मैं डॉक्टर आसिम बोल रहा हूँ। बस मेरा लड़का है 6 साल का, तो बस उसको खांसी रहती बराबर, खांसी उसकी ठीक नहीं होती। हर्मासिलिन का बहुत बड़ा फैन है सर। हर्मासिलिन के अलावा कुछ पीता नहीं, खाता पीता नहीं कुछ। तो उसके लिए क्या किया जाए बस? मतलब भूख कम है क्या? जी, भूख भूख तो बस लगती है, मगर खाना पीना ज्यादा खाता नहीं, कायदे की चीजें जैसे। बेसिकली क्या होता है, बलगम के साथ साथ जो म्यूकस आता है, वो म्यूकस मैदे में अगर अस्तर है, मैदे के अंदर पूरा अगर म्यूकस बच्चे के अंदर होता है तो बच्चे खाता नहीं है। पीडियाट्रिक के अंदर अक्सर तुम देखते होंगे बच्चे जो इन्फेंट होता है, इन्फेंट अक्सर उल्टी करता है बलगम। जैसे कोई बच्चे खांस रहे तो उसके मुंह में उंगली डाल के देखो, बच्चे उल्टी करते हैं तो उसके अंदर साबुन की झाग के जैसे म्यूकस निकलता है। कुछ बच्चों के अंदर पेडियाट्रिक के अंदर अक्सर ये देखने को मिलते है, इतना म्यूकस रहते मैदे के अंदर और इवन इसोफेगस के अंदर तक म्यूकस रहते। तो हम लोग टेलिस्कोप रखने के अंदर हमको ऐसा लगता है ये क्रेपिटेशन लंग्स से आ रहे हैं, ये क्रेपिटेशन लंग्स में ये फूड पाइप से आ रहे हैं। तो फट करके वो बहुत बड़ा क्रेपिटेशन आ रहा है, तो हमने एंटीबायोटिक लिख के दिया। एंटीबायोटिक से क्रेपिटेशन अगर चेस्ट में है तो जाएंगी, अगर ये म्यूकस आपकी मैदे में आ रहा है, आपकी जो फूड पाइप में उसको भी आप टेलिस्कोप रखेगा तो आपको आवाज आती है। तो उसमें क्या करो, उसको निकालने के लिए आपको जैसे तिंगार की जो कंडन एक्सरे तिंगार है या समझो अब्बे तिंगार जैसे चीज से म्यूकस चले जाते, उससे भूख बढ़ता है। ऐसे नहीं कि आपने उसको भी अगर अब्बे मुकव्वी मैदा दिया या कोई ऐसी चीज दिया तो भूख नहीं बढ़ता है। तो अगर म्यूकस की वजह से उसको भूख नहीं लगे तो म्यूकोलाइटिक चीज दो, ताकि बच्चे की अक्सर माँ बाप आके क्या बोलते हैं, बच्चे एक बार उल्टी हो गया तो बलगम बहुत निकल गया तो बच्चे अभी एकदम मतलब खाना पीना शुरू हो गया। बहुत सारे पेडियाट्रिक में इनको बोलते तुम मत कुछ मत करो इन्फेंट्स को, उनके मुंह में उंगली डालो गया इसमें हलक में, हफ्ते में 1-2 बार उल्टी करो। तो बच्चे माँ बाप आके बोलते कि जब से आपने बोला कोई दवा नहीं देते, हफ्ते में उसको तनकिया कर लेते। वो तनकिया से उसको पेट का तनकिया भी होते, बलगम की तनकिया के लिए बेहतरीन चीज है उल्टी करवाना। तो जी एक जगह पे निकलता है। तो ये तरीका एक करके देखो। उसके आप एक काम करो, खाली उनको है ना एक अब्बे तिनकार दो 1 बीडी अच्छा, और ठीक ठीक। शरबत नाप के साथ। ओके, अच्छा, जब हर्मासिलिन बस जैसे ही देते हैं हम, यस यस, फौरन वो इसको तो पलटी आती। सिस्टमैटिक, यस 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 जी, यस। इसको पलटी ओके आती, बलगम बहुत ज्यादा निकलता है। ओके ओके डॉक्टर। जी सर मैं जी। सवाल पूछ सकता हूँ सर अपना? हेलो सर। सर 2 मैं मिनट बोलिए। सवाल पूछ सकता हूँ? अजमल सर। सर मैं ये पूछना अस्सलाम चाहता वालेकुम। था। हेलो सर, मैं एक सवाल हेलो ही पूछना चाहता हूँ। हेलो बोलिए, हाँ बोलिए। सर, आवाज आ रही है मेरी? अरे सर, अरे हाँ सर, एक पेशेंट मैंने देखा है जिसमें सौदावी फिल्थ का गलबा है, स्किन में उसके तकरीबन 7 से हैं, और दिक्कत ये आ गई कि उसने स्टेरॉइड क्रीम यूज कर ली लोकली, तो उसका जो है जो फीचर थी एक्सटर्नल वो भी चेंज हो गई है। मरीज को कॉन्स्टिपेशन है, मरीज को निस्यान है, इंसोम्निया यानी सफरावी फिल्थ का गलबा है। तो इसमें हम पहले नंबर पे असल सबब मर्ज ट्रिगर तो हमने हटाया, लेकिन तादील मिजाज के लिए क्या करें? मुसफ़ियात तो तीसरे नंबर पे देंगे, लेकिन तादील मिजाज के लिए क्या करें? थोड़ा इस पे रहनुमाई फरमाएं। तादील के लिए सबसे बेस्ट एज क्या है पेशेंट का? एजेंट पेशेंट का एज 45 बॉस है, और अच्छा 70 किलो वेट है, और बीपी जो है 140/70 है। देखो, सौदावी मर्ज और सफरावी मर्ज में, सौदावी मर्ज में और सफरावी मर्ज में एक कॉमन फैक्टर है खुश्की। जी ये खुश्की से सबसे ज्यादा तकलीफ होता है सबको, सौदा की खुश्की और सफरा में भी खुश्की, याद रखना। अभी कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, सफरा सौदा की खुश्की समझ के सौदावी मर्ज मान लेते, कभी ये खुश्की की वजह सफरा भी हो सकता है। तो दोनों के अंदर खुश्की है, लेकिन एक में हार है एक में बारिद है, एक में हार है एक में जी बारिद है। तो यहाँ जी उसूल इलाज के अंदर आपको मुरत्तिबात का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज है आब, मतलब क्या नाम उसका, आब माउल जबल, सॉरी,
माउल जबन पहले हमदर्द निकालते थे, आजकल तो माउल जबन आप घर पे बना के पिला सकते हैं पेशेंट को, ताकि उसके अंदर तादील हो जाए। तादील के लिए कि अगर खुश्की की वजह से अगर तादील करना है तो उसको बोलो दूध को बॉईल करो, आधा लीटर दूध को, और हल्का गर्म होने के बॉईल होने के उतारो, गरम गरम दूध के अंदर थोड़ा सा नींबू डाल दो, तो ये फट जाएंगे। दूध फटने के बाद में उनको बोलना वो फ्रेश जो पानी है, वो फ्रेश पानी समझो तकरीबन आधा लीटर अगर इस्तेमाल किया तो 300-400 ml तक वो उसको छान लो अच्छे से। पेशेंट को बोलना एक दिन में एक समझो 2 बार या 1 बार उसको पिया करो। कोई भी सौदावी मर्ज में बदरगाह के तौर पे मामलात के लिए सबसे बेहतरीन चीज है ये जो पानी पिलाना, क्योंकि आजकल इसको आता ही नहीं मार्केट में। पहले आता था क्योंकि उसके अंदर फंगस बहुत आने की वजह से बंद कर दिया गया इसको। जी ओके जी जी सर, जी सर। चलो हेलो सर। सवाल पूछना है हेलो सर। सर, मुझे एक सवाल पूछना है आपसे। हाँ पता नहीं सर आज का टॉपिक अपना पेडियाट्रिक का था, पर तो पेडियाट्रिक में आजकल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है तो जो वीजिंग की वजह से या फिर बलगम की शिद्दत की वजह से जो पेरेंट्स जो है ज्यादातर आवाज कट रही है अब्दुल्ला, आवाज सही नहीं है। नेबुलाइज कराते हैं बच्चों को वीडियोसाल से, लिओलिन से, तो उसका बदल हमारे यहाँ जैसे आपने इकोस्प्रिन का एस्प्रिन का बदल जो है तो तिनकार बताया, तो उसके पैरेलल हमारे पास ऐसी दवा, इफेक्टिव दवा है क्या फौरन ब्रोंकोस्पाज्म को दूर करे? आपने जो ब्रोंकोस्पैसम के लिए हमारे पुराने किताबों में जो चीज लिख के रखे वो आज के दौर के हिसाब से ये नहीं, क्योंकि पुराने जमाने में दतुरा के पत्ते की बीड़ी बना के पिलाओ, ये उसकी दुआ चढ़ाओ, ये दुआ कराओ, ये सब चीज बताते। एक चीज खांसी के लिए एक बेहतरीन चीज मैंने मेरे तजुर्बे में मेरे एक पेशेंट ने मुझे सिखाया, और उसके बारे में टीवी में और सोशल मीडिया में बहुत फेमस था। एक आदमी था, वो बोलते कि उसकी खानदानी नुस्खा है, वो दुनिया की कोई भी खांसी और जो सांस फूलता वो जाता नहीं, खास तौर से खांसी के लिए वो क्या करते, 2 तरीका बता दिया। एक तरीका ये कि काली मिर्ची जो है ना, काली मिर्ची को एक छोटा सा सुई के ऊपर चिपका लगा के उसको जला देते, वो जलने के बाद में पूरा फूंक देते, और वो जो उसकी जलने के बाद उसकी जो धुआं निकलता है उसको इनहेल करते हैं। तो वो कहते हैं कि 1-2 बार इनहेल करने से जो क्रोनिक कफ रहते वो खत्म हो जाते। दूसरी एक चीज ये भी मैंने बहुत जगह पे बताया भी और बहुत इफेक्टिव है, जो हल्दी आता है ना, हल्दी अगर फ्रेश हल्दी का, लेकिन अगर फ्रेश हल्दी नहीं मिल रहा है उसको भी इसे जला के उसको फूंक दे, और उसमें से जो धुआं निकलते उसको इनहेल करने से हमको बहुत फायदा मिलता है। बेसिकली हमारे लेक्चर में ये जो फिलॉसफी सब खत्म होने के बाद आप लोग को ऐसी हिकमत सिखाना है कि कैसे आपने नुस्खा बांधेंगे, कितना नुस्खा बनाने का, पूरी नुस्खा, दवा तैयारी, ये सब अपने टॉपिक में अभी है तदाबीर के। अभी क्या हम जब मैं फिलॉसफी इसलिए सिखा रहा कि बार बार हम उल्टा सीधा सवाल ना करें, एकदम परफेक्ट सवाल करें, वो हिसाब से मैं आपकी बेस परफेक्ट कर रहा हूँ। वरना मैं पीडियाट्रिक में बच्चे को अगर अचानक कुछ हो गया तो ये दे दो, ये दे दो, सब अपने पास हम डिस्कस कर सकते, फौरन बच्चे को रात में भी अगर है तो एतबार से हम दवा दे सकते हैं। इसमें सब्जम एक चीज है, सब्जम से भी आप इनहेल करवा सकते हैं। सब्जम को गर्म पानी में डाल के उसको आप इनहेल कर सकते हैं, कपड़े में भी डाल सकते हैं, ये भी एक बेहतरीन तरीका है। दवा के तौर पे एक इजी नफ्स बोल के एक टैबलेट आता है, ये अरमस का इजी नफ्स, जिसके जुज़े आज़म ये है, क्या नाम का, हल्दी थे, हल्दी 3rd दर्जे में गर्म खुश्क मवादी के आसाबी है। ये देने के एक आधा घंटे के अंदर ही ये जो स्टेटस एस्थमेटिकस जैसे सीवियर एक्यूट अस्थमा वो बंद हो जाएगा। तो याद रखो ये चीज बेसिकली हमको ये सब आपकी जो डाउट है, देखिए जिसमें अभी पेडियाट्रिक मांगता है तो हम क्या करेंगे, पेडियाट्रिक को भी अगर, क्योंकि पेडियाट्रिक खत्म नहीं हुआ, मैं खाली पेडियाट्रिक का दिबाचा यानी कि प्रीफेस आपको बताया, खाली आउटलाइन, आपको जो सोचने वाला उसे सोचे, जो जिसके सोचने की सलाहियत नहीं तो उनको और थोड़ा बता देंगे हम किसको क्या देना है क्या नहीं देने का। ओके, आज हमारा 100 के अबाउट पहुंच गए थे लगभग, और ये हिस्टोरिकल लेक्चर रहा आज का सर। ओके, थैंक यू बॉस, थैंक यू। और सर जो भी हमारे डॉक्टर अशरफ नजीब साहब जो भी क्वेश्चन आपका रह गया है, हम जहमत देंगे कि ग्रुप पर आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और पहला जो है हमारा प्रॉपर वे में रहनुमाई, दूसरा हमारी क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ
बुक मटेरियल, तीसरा क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। ये एकेडमी 3 चीजों पर फोकस कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह ये रहनुमाई में अपना काम कर रही है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना है तो ग्रुप पर आप कर सकते हैं और 9335277765 पर अपनी कोई भी आप क्लू भेजकर हम आपको रहनुमाई मिलती रहेगी। और ये एकेडमी अल्हम्दुलिल्लाह हकीम अजमल खान साहब की एहसास को हमेशा जिंदा रखने के लिए और हकीम केटी अजमल साहब आज के दौर में उसकी रहनुमाई फरमा रहे हैं और इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये इनकलाब आ रहा है और ये अमेरिका से लगाकर, हिंदुस्तान से लगाकर पूरी दुनिया में इस बात की ये हमें पैगाम देना है कि कंसेप्ट ऑफ यूनानी हमारे दिलो दिमाग में जब तक नहीं आएगा तब तक हम सर से कहते रहेंगे, सर ये बता दीजिए कैप्सूल किसमें काम करता है। अगर हमारे जहन में ये दिमाग में आ गया कि कैप्सूल राल का कंसेप्ट अगर आ गया तो एक दवा हजारों जगह इस्तेमाल हो सकती है और 20 दवाओं में पूरी यूनानी डिस्पेंसरी सजा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और आज का दिन हिस्टोरिकल डे और हिस्टोरिकल लेक्चर के लिए हकीम केटी अजमल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।